تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادنا یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شلوم. آج کا موضوع ہے عبادت، یعنی عیدوں، سبتوں یا جتنے بھی قسم کے ہم عبادات کرتے ہیں وہ کیوں ضروری ہیں. ایک حوالہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. خروج کی کتاب اس کا 23 باب ہے، آیت نمبر 25 تا 26 لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. یہوہ پاک خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت ہو. صرف میں نے 25 پڑھی ہے، 26 رہنے دیا، وہ آپ پڑھ لیجیے گا. تو ہر شخص جو ہے اپنے روزی روٹی پر جو ہے وہ برکت چاہتا ہے. آج نفسا نفسی کا دور ہے. آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے خدا کو بھی بھول جاتا ہے اپنی روٹی کمانے کے چکر میں. کیونکہ ایسا ہی ہے، اچھی روٹی کھانے کے لیے انسان صبح سے نکلتا ہے، رات کو اپنے گھر میں آتا ہے. اس کے علاوہ وہ بڑے جتن کرتا ہے. اور آج کل تو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جی عبادت کریے یا بچیاں دی روٹی پوری کریے، عبادت کریے یا بچیاں دی. جبکہ بائبل اس کے برعکس بولتی ہے. بائبل کہتی ہے کہ تو اس کی عبادت کرنا اور وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا. اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ بیماری کو بھی وہ دور کرے گا، بیماری کو بھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے خدا نے پوری تورات کے اندر کیا نظام مقرر کیا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ تخلیق جب یہوہ پاک خدا کرتا ہے تو تخلیق میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بغیر عبادت کے جو زمین سے معدنیات اگتی ہیں، جو پیداوار اگتی ہے، وہ انسان کی عبادت کے بغیر نہیں اگتی. انسان کی عبادت کے بغیر جب تک وہ یہوہ پاک خدا کی عبادت نہیں کرتا تو یہ اگ نہیں سکتی. روٹی کہاں سے اگتی ہے؟ آپ سب کا جواب چاہیے. کہاں سے اگتی ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے. تو اس کا مطلب ہوا سارا روٹی کا تعلق بارش کے ساتھ ہے. روٹی کا سارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کھیتوں کے ساتھ، بارش کے ساتھ، زراعت کے ساتھ ہے. اس کا تعلق آسمان اور زمین دونوں کے ساتھ ہے. آسمان سے بارش آتی ہے، زمین سے فصل اگتی ہے، ہر طرح کا فروٹ، ہر طرح کی کھانے والی چیزیں وہ زمین سے اگتی ہیں. ایون کہ آپ کے تن پر جو کپڑا ہوتا ہے یہ بھی زمین کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی ہر ایک چیز جو ضروریات کی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے. اور آسمان سے پانی جب برستا ہے تو پھر یہ سب کچھ اگتا ہے. پھر یہ سب کچھ، اگر پانی نہ آسمان سے ہے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا، یہ بھی مر جاتا ہے، یہ بھی. سو لہذا جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب آیت نمبر 5 میں تو لکھا ہے، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا. کھیت کا کوئی پودا. جبکہ آپ پیچھے پڑھتے ہیں پہلے چیپٹر میں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین درخت، بیجدار درخت اگائے، پودے اگائے، جڑی بوٹیاں اگائے. ایسا ہی ہے. 6 دن کی تخلیق میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا ایسا ہو جائے. تو زمین کے اندر ایسا ہو گیا تھا. ہر پودے کا بیج جو ہے وہ زمین میں موجود ہو گیا، تخلیق ہو گیا، آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں. بارو خاشم. لیکن وہ اگا نہیں، وہ زمین سے باہر نہیں آیا. وہ زمین سے اس کا ریزن کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا. نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا. یعنی انسان کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو لفظ زمین کو جوتنے سے مراد صرف ہل چلانا ادھر نہیں ہے. جوتنے سے مراد یہ ہے کہ زمین سے اسے کاٹنے کے لیے کوئی انسان نہ تھا. یعنی اس حاصل کو جمع کرنے کے لیے بھی کوئی انسان ہے. یعنی کس کے لیے اگانی تھی خدا نے؟ انسانوں کے لیے. اور انسان تھا ہی نہیں، اس لیے وہ سارے بیج زمین کے اندر رہے جب تک خدا نے انسان کو تخلیق نہ کیا. بارش نہیں ہوئی آسمان سے، کر اٹھتی رہی، اس سے زمین سیراب ہوتی رہی، لیکن اس سے پھر بھی فصل نہیں ہوگی. اس سے پھر بھی فصل ہے. تو فصل کب ہوگی؟ فصل تب ہوگی جب بارش ہوئی. جب کیا ہوئی؟
जब आप पैदाइश की किताब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज और चांद को चौथे दिन बनाया जाता है। सूरज और चांद को क्या किया जाता है? इससे पहले आप दीगर तख्लीकात भी देखते हैं, लेकिन उसके बाद सूरज और चांद को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और सूरज चांद को बनाने के बाद वहां पर सूरज और चांद का एक काम मुकर्रर किया जाता है, लिखा है वो जमानों, निशानों और दिन और बरसों के इम्तियाज के लिए। वहां जो लफ्ज जमानू है इब्रानी में यहां पर मयादीन लफ्ज है जिसका मायने ईदों है, जिसका मायने मुकर्रर वक़ात है। तो खुदा ने तख्लीक करने से तख्लीक करते करते ईदें भी वहां पर बता दी, ईदें भी। अब ईदें और शबात या जितनी भी मजमे में इबादत खुदा की होती है, खुदा ने वो भी सारी तैयार कर दी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि तख्लीक में सिर्फ कायनात के अंदर ये मादनी चीजें बनाई गई, हमारी जरूरत की चीजें बनाई गई, लेकिन एक बात मत भूलें कि तख्लीकात जो आप देखते हैं उसमें सूरज और चांद को बनाया गया। सूरज और चांद को इसलिए बनाया गया है ताकि हम इनसे मुकर्रर वक़ात का तयन करें और फिर यहोवा पाक खुदा की क्या करें? इबादत करें। यहोवा पाक खुदा की क्या करें? इबादत करें। तो वहां मयादीन लफ्ज जो है वो आपको मिल जाता है, जिसका मतलब ये हुआ है कि यहोवा यहां अपनी ईदों और सबतों का ऐलान कर रहा है, उसको मुतारफ करा रहा है। हालांकि इससे पहले जमीन को क्या किया गया? खुश्क किया गया, जमीन नजर आए, ठीक है जी। और फिर हम तख्लीकात के अमल में देखते हैं जी, पौधे उगे, दरख्त उगे, फसल उगे, लेकिन साथ ही यहोवा पाक खुदा ने अपनी ईदों को क्या किया? अपने सबतों को क्या किया? मुतारफ करवा दिया, क्योंकि इन्हीं में इंसान ने यहोवा पाक खुदा की क्या करनी होती है? इबादत। इनमें उसने क्या करनी होती है? सबकी आवाज इबादत करनी होती है। तो आप देख भी सकते हैं कि ईदों का जो तल्लुक है वो सारा का सारा, जितनी भी ईदें बिब्लिकल ईदें हैं, वो सारा का सारा उसका तल्लुक ज़रियात के साथ है। ऐसा ही है। ईद क़याम का आप तल्लुक देख लें किसके साथ है? खेतों के साथ, फल फ्रूट के साथ, ठीक है जी, तो फसलों के साथ है। इसी तरह आप ईद शबाऊत का तल्लुक भी देख लें तो उसका तल्लुक भी फसल और खेतों के साथ है। इसी तरह पहले फलों की ईद देख लें तो उसका भी तल्लुक किसके साथ है? फसल के साथ है। इसी तरह अब जो नए तेल की ईद आ रही है, ठीक है जी, जो बतौर पहले फल के तौर पर जो है नया तेल पेश किया जाता है, अब वो भी फसल के साथ अलग रखता है। वो भी किसके साथ अलग रखता है? बाइबल की तमाम ईदों का ताल्लुक फसलों के साथ है। सारी ईदों का तल्लुक, सब्बत का तल्लुक भी किसके साथ है? फसलों के साथ है। योबली का सब्बत या छुटकारे का सब्बत जब मनाया जाता है तो फसलों को स्टॉप कर दिया जाता है उसमें काम करने के लिए, और फिर लिखा है छुटकारे के साल में तूने क्या करना है? फसलों के किनारों को क्या कर देना? छोड़ देना, ताकि गरीब उसमें से खाए। तो आप कोई भी त्यौहार उठाकर देख लें इबादत के लिए जो मुकर्रर किए गए हैं, उसमें आपकी फसल को मांगा गया, आपके माल को मांगा गया, और आपको कहा गया कि तूने मेरी क्या करनी है? इबादत करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इबादत का चेहरा दिखाया गया है वो है जी जोर जोर से ढोलकी बजाना, ठीक है जी, बदरूहों का एक शोर दिखाना, लोगों को यह बताना कि जी जिस चर्च के अंदर बहुत ज्यादा बदरूहें निकलती हैं वहां इबादत हो रही है, जहां मौजूदे होते हैं वहां क्या हो रही है? इबादत हो रही है। एतवार को इकट्ठे हो जाना, इसको लोग इबादत कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो इबादत का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां जो खुरूज की किताब में जिस इबादत का जिक्र किया गया है उसका मायने बेसिकली मोयादीन के साथ अलग रहता है। उसका तल्लुक किसके साथ है? मोयादीन के साथ और तौरात की पैरवी के साथ है। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि तू मेरे ईदों, सबतों और मुकर्रर वक़ात पर जमा होना, मजमा करना, मेरी इबादत करना, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। और तौरात पर अमल करना। ठीक हो गया जी? अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम ये देखते हैं कि आदम और हव्वा गुनाह कर देते हैं। आदम और हव्वा क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। फसल पहले खुद ब खुद उगती है। आदम और हव्वा ने जाकर सिर्फ उसे क्या करना होता है? काटना और खाना है। लेकिन जब गुनाह आया तो आदम को कहा गया कि जमीन तेरे सबब से क्या हो गई है? जरा गौर करें, जमीन क्या हो गई है तेरे सबब से? यानी वो जो खुद ब खुद तुझे रोटी देती थी, खुद ब खुद तुझे खुराक देती थी, सिर्फ एक ही वजह से। वो वजह कौन सी थी? कि अम्मा हव्वा और अब्बा आदम या हव्वा पाक खुदा की क्या करते थे? इबादत करते थे, उसकी तौरात की पैरवी करते थे। जिस दिन उन्होंने तौरात को तोड़ा, मुकर्रर वक्त को तोड़ा, तो क्या हुआ? अब आदम को रोटी खुद कमाना पड़ी।
लिखा कि तू अपने खून पसीने की क्या करेगा, आप सब मेरे साथ हैं, तू अपने खून और पसीने की क्या करेगा, रोटी खाएगा। इतना बड़ा फर्क आ गया। इबादत जो है जोर जोर से चिमटा बजाने को नहीं कहते, इबादत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उछल उछल कर गीत गाने को नहीं कहते, चर्च के अंदर लाला लाला मचाने को इबादत नहीं कहते। ये जो छलांगे मारते हैं चर्च के अंदर पादरी हजरात, ड्रामेबाजियां करते हैं, इसको इबादत नहीं कहते। तो रात के मुताबिक उसके ईदों सबतों उसके मुकर्रर वक़ात पर जमा होकर उसकी इबादत करना और उसकी तौरात की पैरवी करने को इबादत कहते हैं। हालेलुया। जैसा कि मैं आपको एक और हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, यशायाह की किताब, उसका 43वां बाब है, आयत नंबर 20 और 21 पढ़ रहा हूं। लिखा है, जरा सियाको सुबाह को नजर में रखिएगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतर मुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जानवर उसकी परस्तिश क्यों करेंगे, इबादत क्यों करेंगे? क्योंकि यहोवा पाक खुदा उनके लिए पानी मुहैया करेगा, वहां नदियां जारी करेगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के पीने के लिए हूं। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, ताकि वो मेरी क्या करें, अपने लोगों के लिए उसने नदियों को जारी किया। ठीक है जी। और जानवरों को भी खुदा ने ये खुराक दी, ये मुहैया किया सब कुछ, और लिखा कि वो भी यहोवा की क्या करेंगे, ताजीम करेंगे। तो लिखा कि मेरे लोग उसमें से पिए, मेरे लोग उसमें से क्या करें, और फिर लिखा इसलिए मैंने उनको बनाया ताकि वो मेरी क्या करें, हम्द करें। अब यहां पाकिस्तान के अंदर इबादत के जो तरीकेकार हैं वो लोगों ने खुद गढ़ लिए हैं। तो जरा गौर कीजिए कि आपको माबूद जब इबादत करने के लिए कहेगा अपनी, तो उसका तरीका भी साथ बताएगा। ऐसा ही है। तो एक आबद जो होता है वो नहीं तय करता कि मैंने माबूद की किस तरह से इबादत करनी, बल्कि माबूद तय करता है कि मेरे आबद ने मेरी इबादत किस तरह करनी है। अब बाइबल में जो तरीकेकार लिखे हुए हैं, माजरत के साथ वो तरीकेकार इस वक्त क्रिश्चियनिटी में नजर नहीं आते, वो नजर नहीं आते इबादत में। ठीक है जी। मैं रोज मुझे कोई ना कोई नई से नई यूट्यूब पर वीडियो लोग भेजते हैं और कहते हैं ये देखे जी इनके ड्रामे, ये देखे जी इनके ड्रामे। लोग चीख चीख कर बदतमीजी के साथ यहोवा पाक खुदा के सामने दुआएं करते हैं और बड़ी अजीब किस्म की शायरी के गीत गाते हैं जो कि गैर शरई और गैर बाइबली गीत होते हैं। ठीक है जी। और बड़ी बेसुरी ढोलक और तबला पता नहीं किस किस्म का बजाते हैं, जबकि वो म्यूजिक भी जो गैर शरई होता है। बाज इंस्ट्रूमेंट जो बज रहे होते हैं उनके अंदर जो सुर ताल होती है वो भी गैर शरई होती है। ठीक है जी। आपको पता है कि तौरात के अंदर ये वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया था कि तुमने शौलिमत और अलमूत राग पर गाना है। खुदा ने 2 राग भी बताए थे उनको कि तुमने किस पर गाना है। तो अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर दड़ा मरा सब चल रहा है, एक खिचड़ी बना दी गई और लोग इसको आज इबादत कहना शुरू हो गए, लोग इसको इबादत समझना शुरू हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। जब बनी इसराइल कौम खुदावन की ईदें मनाती रही तो रात के मुताबिक उसकी इबादत करती रही, तो आप देख लें कौमों को उन्होंने जेर किया। आप देख लें कि खुदा ने उनको सरफराजी दी, खुदा उनके साथ रहा, और जैसे ही वो खुदावन की इबादत बंद करते, ईदों को मनाना बंद करते, जब भी वो खुदावन के अहद को रद्द करते, तो आप देख सकते हैं कि बनी इसराइल असीरी में जाते रहे। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और ये आज भी कलाम वैसा का वैसा, इसमें कोई रद्द बदल, बल्कि ईदें तो तखलीक का हिस्सा हैं। ईदें तो तखलीक का क्या है, सारी तखलीक वैसी की वैसी है। ईदें कैसे तखलीक से बाहर निकल सकती हैं? ये तो तखलीक का हिस्सा है, सबत तखलीक का हिस्सा है। तो आज जितने लोग भी शबात नहीं मनाते, शबात पर जमा नहीं होते, शबात का मजमा नहीं करते, शबात के दिन इबादत नहीं करते, ईद के दिन इबादत नहीं करते, मुझे बताएं कि वो आपके रोटी और पानी पर क्यों बरकत दे? ये जो हमने रिट लगाई हुई है दुआओं में, और पादरियों को कहते हैं दुआएं करो हमारे लिए, ये पादरी नौकर नहीं लगे हुए कि आपके लिए दुआएं करें और आप नाफरमान बने रहे। क्यों जी? बाइबल ने वाज़ेह तौर पर आपको मशवरा दिया है कि आप यहोवा पाक खुदा की इबादत करें तो वो आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा। ये उसका काम है, कहां से देना है। वो ये नहीं देखता कि IMF ने कर्जा दिया या नहीं दिया। यहोवा पाक खुदा की बरकत जो है ना, वो किसी मुल्क के हालातों पर मुनसर नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप देख लें कि पूरे मुल्क में काल था, लेकिन एलिया और बेवा को रोटी मिल रही थी। पूरे मुल्क में काल था, तो आप देख लें कि खुदा ने वो जो पहले फल के लेके आया था, जौ की रोटियां,
ठीक है जी, बाल सलीसा से। आप देख लें कि उसके खेत में फसल उग रही थी, पूरे मुल्क में काल था। तो पॉसिबल है कि इस मुल्क में काल पड़ जाए, अभी तो काल नहीं पड़ा, पॉसिबल है कि इस मुल्क में काल पड़ जाए, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आप उसकी इबादत उसके कलाम के मुताबिक करते रहेंगे तो वो आपके रोटी और पानी पर क्या करता रहेगा, ये उसका काम है। अब तस्वीर का दूसरा रुख ये है, अगर किसी से पूछ लो कि तुम इबादत क्यों नहीं करते, तुम ईद क्यों नहीं करते, तुम शबाज क्यों नहीं मनाते, मेरी बहुत सारे भाइयों से जब बात होती है तो वो एक लंबी लिस्ट निकाल लेते हैं मजबूरियों की। क्यों जी, ऐसा ही है, वो जी मेरा फलाना काम नहीं ठीक, मेरा फलाना मसला नहीं ठीक, मेरा फलाना मसला नहीं ठीक, मैं इस मसला में फंसा हूं, मैं ड्यूटी से लेट आता हूं, मैंने ये करना आता है, मैंने वो करना आता है। और भाई तू इबादत नहीं करता, इसीलिए तो तुझे बरकत नहीं मिल रही, इसीलिए तेरे घर में जो है तेरे रोटी और पानी पर बरकत नहीं, तू रोटी से मोहताज हो गया। वो एक ज़बूर गाते हैं ना, मैं बच्चा सा होना बुढ़ा हां, ना देखी कदी भी सादक दी औलाद रोटी मांग रही, वो ज़बूर हम गाते हैं। तो खुदा जो है अपने लोगों को तब बरकत देता है जब हम उसके कलाम के मुताबिक क्या करते हैं, इबादत करते हैं। एक हवाला है और पढ़ देता हूं आपके लिए, गज़ल गुज़लात की किताब, उसका दूसरा बाब, आयत नंबर 10 से लेकर 13 तक पढ़ रहा हूं। मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, देख मींह बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है, जमीन पर फूलों की। मैंने कल भी ग्रुप में बताया था कि ये जो कमल का फूल होता है, इसके कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, और इसके 5 पत्ते बड़े मजबूत होते हैं, इसके 5 पत्ते बहुत मजबूत होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो पहली आयत है, पहली आयत से जो जहां से यहोवा एलोहीम लफ्ज लिखा हुआ है, एलोहीम से अगला लफ्ज एत लिखा हुआ है, एत से गिनना शुरू करें तो अगले लफ्ज एलोहीम तक 13 अल्फाज हैं। इब्रानी के कितने अल्फाज हैं, 13 अल्फाज हैं। तो आप देख लें, इब्तिदा में ही खुदा ने यह तासुर दिया हुआ है, और ज़ुहार, कबाला ज़ुहार ये कहती है कि जो 13 का अदद है यहां पर पैदाइश की किताब में, ये जाहिर करता है कि बनी इसराइल को 13 रहमतों ने घेरा हुआ है, या 13 नेमतों ने घेरा हुआ है, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि 5 का जो अदद है वो नजात का अदद है, वो किसका अदद है। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि जो फूल है ये तख्लीक की अलामत है, क्योंकि फूल ऐसे खिलता है, फूल क्या होता है, ऐसे खिलता है, तो ये तख्लीक की अलामत है, फूल जो होते हैं, इसलिए इसमें खुशबू होती है, ठीक है जी। तो तख्लीक जो है वो यहां कहा गया है कि फूलों की बहार है, फूलों की बहार है। तो किस लिए नाज़नीन ने आना है, किस लिए यहोवा से महबूब जो है वो अपनी प्यारी कह रहा है, और लिखा वो कह रहा है चलिए, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं तेरा खालिक हूं, मैंने तख्लीक किया है, मैंने क्या किया है, मैंने नहीं बरसाया है, मैंने ये सब कुछ खलक किया है। हालेलुया जी। फिर आगे लिखा है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी, अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताके फूलने लगी, उसकी महक फैल रही है, सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला चलिया। कलीसिया को यहोवा का खुदा कह रहा है कि सब कुछ बेहतरीन हो चुका है, अब तेरा काम क्या है कि तू चलिया। खुदा ने क्यों तख्लीक की सारी, इंसान को क्यों बनाया, ताकि वो मेरी क्या करे, हमद करे। चलिया से मुराद यह है कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ रह, मेरी इबादत कर। कोई भी शौहर अपनी बीवी को भूखा रखता है जी, कपड़े के बिना रखता है। हर शौहर की जिम्मेदारी होती है वो अपनी औरत की क्या करे, जरूरतें पूरी करे। तो हमारा जो दुल्हा है यहोशुआ हमाशियाह, कैसे मुमकिन है कि वो कलीसिया की जरूरियात पूरी ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कलीसिया जो उसकी प्यारी है वो कहता है कि भाई ये सारा कुछ हो गया है, अब तू चलिए, अब तू। आपको पता है यहूदियों के अंदर तब तक लड़का शादी नहीं कर सकता जब तक वो अपनी दुल्हन के लिए सब कुछ बना ना ले। वो पहले कारोबार लिखा है, वो पहले खेत खरीदता है, खेत में खेती बाड़ी करता है, आज मॉडर्न दौर में वो बिजनेस करता है, ठीक है जी। फिर वो किसी घर को लेता है, एक घर बनाता है, फिर वो शादी करता है। ये यहूदी मिदराज से भी मैंने कई दफा आपको रेफरेंस दिया, समझाया। इसी तरह आप जब कायनात की तख्लीक देखते हैं, आदम और हवा को पहले बनाया गया या बाद में? सारी तख्लीक करने के बाद यहोवा पाक खुदा ने आदम और हवा को बनाया, पहले नहीं बनाया। सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने बनाया ताकि आदम और हवा यहोवा पाक खुदा के साथ रहे। उसको छोड़ना ही तख्लीक से या बरकत से हाथ धोना है। तो
अजीजों, जो इबादत है इसको छोड़ने का मतलब है अपनी बरकत को छोड़ना, अपनी नेमतों को छोड़ना, अपने घर को अजाब में डालना, बाग अदन से बाहर निकल जाना, उन नेमतों से निकल जाना जो खुदा ने हमें दी होती है। इसीलिए तो हमारे घरों में जो तंग दस्ती, परेशानी, रोजी रोटी की कमी होती है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें भरपूर तरीके से बरकत दे और हम खुशहाली की जिंदगी बसर करें, तो हर हाल में ईदें, शबात और मुकर्रर वक़ात जो हैं उन पर जमा होकर यहोवा पाक खुदा के नजराने पेश किया करें जो बाइबल में तय है, और अपने आप को शबात के लिए खुदा के सामने पेश किया करें, और जो तौरात में लिखा है उस पर अमल किया करें। बारूक हाशिम, हालेलुया जी। अच्छा, इसी महीने की 23 तारीख को ईद आ रही है, ईद शबाउत, जो कि दूसरी दफा मनाई जाती है, क्योंकि खुदा ने जब पहली बार तख्तियां दी तो वो तोड़ दी गई। तो खुदा ने फिर मूसा को ऊपर बुलाया, लिखा कि तू 2 तख्तियां लेकर आना, मैं उस पर क्या करूंगा, तुझे फिर शरीयत लिख दूंगा। तो 23 तारीख को जो है इसी याद की ईद आ रही है, दोबारा तौरात मिलने की। ठीक है जी, तो इसको भी ईद शबाउत आप कह सकते हैं। ठीक है जी, वैसे तो इसे नए तेल की जो ऑफरिंग है उसकी ईद कहा जाता है। तो लिहाजा हम सब इस ईद के लिए भी अपने आप को तैयार करें और सब जमा होकर खुदावंद की तौरात के लिए शुक्रगुजारी करें। बारूक हाशिम जी, सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। बारूक हाशिम।